So hello guys, welcome back to the channel MedMaster. I am Dr. MM Keralia and today we will gonna learn about the heart anatomy part 2. So first we will gonna take a look in the previous part, then we will gonna do in second part. So what is in the previous part? We have learned introduction, external features and grooves or sulci in the part 1. As well, we have seen the definition that the heart is a conical hollow muscular organ situated in the middle of mediastinum. It's enclosed within the pericardium. Its functions are central organ of circulatory systems. It pumps blood to the various parts of the body to meet their nutritive requirements. तो ये थी डेफिनेशन. फिर हमने कुछ ग्रीक मीनिंग्स और लैटिन वर्ड्स के मीनिंग जाने, उसकी जो पोजीशन थी उसके बारे में बात की. देन हमने उसके कुछ एक्सटर्नल्स फीचर्स देखे, जैसे उसका जो वेट होता है वो देखा, जैसे कि 280 टू 340 ग्राम इन मेल्स एंड 230 टू 280 ग्राम इन फीमेल्स. तो कुछ इस तरह से हमने देखा, उसका जो वेट किस तरह से बढ़ेगा वो हमने देखा. देन वी हैव लर्नड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स दैट द mitral valve as well as tricuspid valve. So here is a tricuspid valve and here is the mitral valve. The here is the pulmonary artery and this is arch of aorta. We can say here is the pulmonary vein and the superior and the inferior vena cava. So this is about the anatomy. Then we have learned about the four chambers in a short, that right atrium, right ventricle, left ventricle, and many thing else. Okay, we have learned all the grooves and sulci of the cardiac surface. The one that is the intraatrial grooves, intraventricular grooves that are present here, that we can see here, that these are the intraventricular grooves, these are the intraatrial grooves. Okay, we have learned it. Here you can see that here is the crux cordis. We will learn about it in today's lecture. This is intraatrial groove, this is the coronary sulcus, and this is the interventricular groove that is from posterior side. Anteriorly this is intraventricular groove and there is the right atrioventricular groove, left atrioventricular groove. So these are the grooves we have seen. Then we have, now let's start the second part. So in this part, we will learn about the apex and base of a heart. Then we will gonna learn about surfaces of the heart, borders of the heart. So this is the thing which we will gonna learn in part 2. Now let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज द एनाटॉमिकल अपेक्स ऑफ द हार्ट. अपेक्स किसे कहते हैं? द अपेक्स इज द of the conic is the conical left by the ventricle which is directed anterior inferiorly and to the left. तो अपेक्स जो है वो है एंटेरियो इन्फीरियरली लेफ्ट साइड पे हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है वो अपेक्स है. क्या है? ये अपेक्स है. इट इज ओवरलैप्ड बाय लेफ्ट लंग एंड प्लूरा. The apex is located most commonly behind the fifth left intercostal space, near or little medial to the mid-clavicular line. And in the living subject, pulsation may be seen and felt over the region. And in children below 2 years, apex is situated in the left fourth intercostal space. तो बड़े जो एडल्ट होंगे उसमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलेगा, और चिल्ड्रन में जो 2 साल से छोटे हैं उसमें फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलेगा. तो चलिए अभी हम यहाँ पे एपेक्स की बात करते हैं. तो हियर इज द एपेक्स यूजुअली एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन. तो ये क्लेविकल है यहाँ पे कुछ इस तरह से. तो इसकी मिड क्लेविकल ये लाइन है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एपेक्स और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस देखने को मिली है, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. और जो छोटे बच्चे होंगे 2 साल से छोटे, उनमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फोर्थ में.
ओके, तो ये थी एपेक्स के बारे में बात। अभी बात करते हैं बेस। बेस है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। अगर हम हार्ट को एनाटॉमिकल पोजीशन में लेंगे तो उसका जो बेस होगा वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होगा। द ट्रू कार्डियक बेस is somewhat quadrilateral with curved lateral extensions. Now let's see. So here is the posterior part of the heart. We can see. बराबर ये है कर्व्ड, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, विथ कर्व्ड लेटरल एक्सटेंट। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, बराबर, उसका जो लेटरल एक्सटेंट है वो यहाँ पे कर्व्ड है। ये हमें देखने को मिलेगा कर्व्ड एक्सटेंट। क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 क्वाड्रिलेटरल है, बराबर। So the two cardiac base is somewhat quadrilateral with a curved lateral extensions. तो now let's see, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा उसको क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 एंगल्स हो जाते हैं, नियरली 4 एंगल्स। एक यहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे बनता है, बराबर, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। तो 4 एंगल बनते हैं, उसी वजह से इसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, बराबर। एंड कर्व्ड इन द लेटरल एक्सटेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व्ड इन द लेटरल एक्सटेंट। तो कर्व्ड किस तरह से है, देखिए ये है जो वो है लेटरल एस्पेक्ट है, बराबर। तो ये क्या है, कर्व्ड है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। इट फेसेस पोस्टीरियरली एंड टू द राइट, separated from the thoracic vertebra by a pericardium, right pulmonary vein, esophagus and aorta. तो इट फेसेस पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, तो मेनली ये जो पार्ट रहेगा बेस कार्डियक का वो पोस्टीरियरली रहेगा, टू द राइट यानी राइट साइड पे थोड़ा है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम thoracic vertebra by a pericardium, right pulmonary vein, esophagus and aorta. ये हमें इस लोकेशन, इस डायग्राम में हमें देखने को मिल जाता है कि ये है वर्टेब्रा है, बराबर, और ये हार्ट है। तो सेपरेट किस तरह से हुआ, थोरेसिक एओर्टा से, बराबर, इसोफेगस है यहाँ पे, वेना केवा है, तो इससे ये वर्टेब्रा से, पेरिकार्डियम से इस तरह से डिफरेंशिएट सेपरेट होता है। तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। then it is formed mainly by the left atrium and only partly by the posterior part of right atrium. तो जो बेस है वो मेनली लेफ्ट एट्रियम से ही बना है, स्लाइटली जो पार्ट रहेगा वो राइट एट्रियम का रहेगा। जैसे कि ये जो है पोस्टीरियर पार्ट है हार्ट का, ओके। सो दो जो जो ये पार्ट है लेफ्ट एट्रियम का हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो मेनली मेजर पार्ट है वो लेफ्ट एट्रियम का है, बराबर। ओनली शॉर्ट ऑफ द पार्ट, जो छोटा सा पार्ट है वही हमें राइट एट्रियम का देखने को मिलेगा। ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा वही राइट एट्रियम का है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट एक्सटेंड सुपीरियरली टू द बाइफर्केशन ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड inferiorly टू द posterior part of atrioventricular groove which contains the coronary sinus and coronary arterial branches. तो इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा सुपीरियरली एट द बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। तो यहाँ पे ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, तो सुपीरियरली कहाँ पे है, ये पल्मोनरी ट्रंक के बाइफर्केशन पे, एंड inferiorly कहाँ पे है, inferiorly to the posterior part of atrioventricular groove which contains the coronary sinus and coronary arterial branch. तो पोस्टीरियरली यहाँ तक इसका एक्सटेंड है, ये है कोरोनरी साइनस और ये है कोरोनरी आर्टेरियल ब्रांच। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट इतना ही है, ये है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आ जाता है मेनली। तो सुपीरियरली और इन्फीरियरली ये इतना कवर करेगा, बिकॉज हार्ट का जो लोकेशन है वो थोड़ा सा ऑब्लिक है, तो ये जो पार्ट है वो एंटेरियर चला जाएगा।
बराबर। ये पार्ट एंटीरियर चला जाएगा, ये ही पार्ट होगा जो पोस्टीरियर रहेगा। एंड मेजरली लेफ्ट एट्रियम कवर करेगा, थोड़ा सा राइट एट्रियम कवर करेगा। ओके। It is limited to the right and left by round surface of a corresponding atria separated by shallow interatrial groove। अब लिमिटेड है कहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट राउंडेड सरफेस ऑफ करस्पॉन्डिंग एट्रिया सेपरेटेड बाय सेलो इंटर एट्रियल ग्रुप। तो जो है वो लिमिटेड है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये एक इंटर एट्रियल ग्रू है, छोटा सा, ये इंटर एट्रियल ग्रू से सेपरेटेड है बट लिमिटेड है ओनली राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के तरह से ही। ओके, नाउ लेट्स, व्हाट इज नेक्स्ट? The point of the junction of atrioventricular, interatrial, and posterior interventricular grooves is termed as a cardiac crux। अभी हम बात करते हैं कार्डियक क्रक्स के बारे में। तो हमें जैसे कि यहाँ पे पिछली जो फिगर थी इसमें हमें देखने को मिला, वो पार्ट 1 में थी यहाँ पे। तो जो पॉइंट है जहाँ पे इंटर एट्रियल ग्रूव मिलता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव मिलता है, ये वाला, एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव जो मिलेगा, ये जो पॉइंट है उसको कार्डियक क्रक्स बोला जाता है। तो ये था कार्डियक क्रक्स। इसके बारे में और भी आगे एक आएगा डायग्राम, वहाँ पे हम देखेंगे। बराबर, ये है कार्डियक क्रक्स। तो यहाँ पे हमें मिलता है इंटर एट्रियल ग्रूव, सॉरी हम कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ओके, ग्रीन। ओके, तो ये है इंटर एट्रियल ग्रूव, बराबर। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, और यहाँ पे है इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो ये जो तीनों पॉइंट है यहाँ पे मिक्स होंगे, उसको हम बोलेंगे क्रक्स। क्या बोलेंगे? कार्डियक क्रक्स। तो ये थी बात कार्डियक क्रक्स के बारे में। नाउ अभी आगे हम बात करते हैं। सो द कार्डियक बेस, the two pulmonary vein on each side open into the left atrial part of the base, whereas the superior and inferior vena cava open into the upper and lower parts of the right atrial basal region। तो जो पल्मोनरी वेन है ऑन ईच साइड ओपन इनटू द लेफ्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियल पार्ट ऑफ द बेस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर पार्ट में, यहीं पे जो पल्मोनरी वेन है, ओके, पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम में ओपन होगी, और जो पल्मोनरी आर्ट सॉरी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा है वो ओपन होगी किसमें? अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द राइट एट्रियम। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो है इस पोर्शन में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा एसवीसी, और यहाँ से आएगा आईवीसी। ये दोनों राइट एट्रियम में ओपन हुई, दोनों अलग अलग लोकेशन से। पर पल्मोनरी जो आर्टरी है वो यहाँ से ओपन हुई, सॉरी पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम में एक ही जगह से ओपन हुई, जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो कुछ इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट एट्रियल पार्ट में ओपन होगी, पल्मोनरी वेन सॉरी, the two pulmonary veins on each side open into the left atrial part of the base। pulmonary veins जो होगी वो लेफ्ट एट्रियल पार्ट में होगी, और एसवीसी और आईवीसी दोनों अपर और लोअर पार्ट से ओपन होंगी, जिसको हम डायग्राम में कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि एसवीसी जो है यहाँ पे, एसवीसी यहाँ से ओपन होगी, आईवीसी यहाँ से जाएगी, और जो पल्मोनरी वेन है वो यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में ओपन होगी। बराबर। The area of left atrium between the opening of right and left pulmonary veins forms the anterior wall of the oblique pericardial sinus, जिसके बारे में हमने पेरिकार्डियम वाले लेक्चर में बात की कि जो लेफ्ट ओपनिंग है
pulmonary vein, right and left pulmonary veins forms the anterior wall of a pericardial sinus. तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, देखिए ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है, ये है, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट, ओके, सो हियर इज द एसवीसी, ये है आईवीसी, ओके। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, जो आर्टेरियल और वेनस ट्रंक के बीच में है ये वाला, ये क्या है, कलर यहाँ पे चेंज, ये जो देखने को मिल रहा है वो है ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस। और ऑब्लिक साइनस, ये वाला जो साइनस है यहाँ से हमें देखने को मिलेगा वो होगा ऑब्लिक साइनस। ऑब्लिक साइनस क्यों? बिकॉज ये राइट एंड लेफ्ट दोनों पल्मोनरी वेन्स को डिवाइड करता है, तो इसको ऑब्लिक साइनस बोला जाएगा। तो ये है, वो है राइट पल्मोनरी वेन और ये है लेफ्ट पल्मोनरी वेन, उसके बीच में हमें यहाँ पे ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस देखने को मिल रहा है। नाउ लेट्स लर्न द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट? The description of the anatomical base reflects the usual position of a heart in the thorax. Some confusion is produced by a current usage of the term base, often applied to the segment of atrioventricular and ventriculoatrial junction seen after dissection through the atrioventricular groove. Wrist area is termed better as the base of the ventricle. तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की है। In clinical practice, auscultation in the near or near parasternal parts of the second intercostal space. तो क्लिनिकल बेस पे क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान ऑस्कल्टेशन किया जाएगा occurring at the clinical base to make the contrast with a clinical effect. Such a description, while less perfect anatomically, will almost certainly persist. तो ये सिर्फ जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसका एनाटॉमिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। इसका जो कॉन्ट्रास्ट जो बनाने में यूज़ होगा मेनली ये जो वर्ड है इस तरह से कहते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑस्कल्टेशन किया जाता है क्लिनिकल बेस पे और साथ ही साथ में क्लिनिकल अपेक्स पे, तो कॉन्ट्रास्ट टू मेक अ कॉन्ट्रास्ट विथ क्लिनिकल अपेक्स, ठीक है। तो ये है ऑब्लिक साइनस, ये है ट्रांसवर्स साइनस। नाउ लेट्स सी द सरफेसेस ऑफ द हार्ट। So first we will gonna learn about the anterior or sternocostal surface of the heart. So जो anterior surface है facing forwards and upwards, the anterior surface has an acute right and a more gradual left convexity. तो right and left जो convexity देखने को हमें anterior surface में देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉन्वेक्सिटी हमें देखने को मिलेगी वो एंटीरियर सरफेस में। इट कंसिस्ट ऑफ एन एट्रियल एरिया सुपीरियर एंड टू द राइट एंड वेंट्रिकुलर एरिया इंफीरियर एंड टू द लेफ्ट ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप। तो ये किस तरह से कंटेंट होगा? तो जो राइट एट्रियल एरिया है, लेफ्ट एट्रियल एरिया है एंड इंफीरियरली हमें देखने को मिलेगा ये है राइट वेंट्रिकल एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कुछ इस तरह से कंटेंट है उसके। द एट्रियल एरिया इज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट entirely by a right atrium. The left atrium is largely hidden by the ascending aorta and pulmonary trunk. तो ascending aorta और pulmonary trunk में जो एट्रियल एरिया है वो हाइड हो जाएगा। मेनली ये जो पार्ट रहेगा सिर्फ राइट एट्रियम से ही कवर्ड होगा। ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियल अपेंडेज प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक ऑफ वेंट्रिकुलर रीजन। तो ये जो मेजर पार्ट है यहाँ पे वो हमें एंटीरियरली राइट एट्रियम का देखने को मिलेगा। लेफ्ट एट्रियम का बस छोटा सा पार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, बिकॉज मेजर जो एरिया होगा वो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से हाइड हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम का पार्ट। अबाउट 1/3 इज मेड अप बाय द लेफ्ट एंड 2/3 बाय द राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट एंटीरियर सरफेस है उसका 1/3 लेफ्ट से बनेगा और 2/3 राइट वेंट्रिकल से बनेगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है
कि 2/3 है वो राइट वेंट्रिकल से बना है, ओनली ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, बराबर 1/3 और ये वाला 2/3 मेजरली राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो कुछ इस तरह से एंटीरियर सरफेस कवर करेगी। द साइट ऑफ सेप्टम बिटवीन देम इज इंडिकेटेड बाय एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो ये जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। ओके, दोनों के सेप्टम के बीच में हमें देखने को मिलेगी वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। The sternocostal surface is separated by the pericardium from the body of sternum. ओके, sternocostal surface यानी एंटीरियर सरफेस वो पेरिकार्डियम के द्वारा स्टर्नम से सेपरेट होगी। ये हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्टर्नम होगा, बराबर, और यहाँ पे पेरिकार्डियल कवरिंग आ जाएगा, तो उसी वजह से सेपरेट होगी। द स्टर्नोकोस्टल मसल्स एंड थर्ड टू सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज बिकॉज of the bulge of the heart to the left. More of the surface is behind left costal cartilage than the right. तो ज्यादातर जो पार्ट होगा वो लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेगा, और थर्ड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलेगा। It is also covered by a pleural membranes and the thin anterior edges of the lung, except the triangular area at the cardiac incisure of the left lung. The lungs and the pleural crawlings are variable in their degree of a cardiac overlap. तो जो एंटीरियर सरफेस होगी उसका मेजर पोर्शन लंग से भी कवर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एंटीरियर कवरिंग आ जाएगा लंग्स का एंड प्लूरा का। तो ये जो है मेजर सरफेस जो प्लूरा और लंग से कवर हो जाएगी, मेनली थोड़ा सा पोर्शन ही रहेगा जो ओवरलैप नहीं होगा। ओके, तो ये थी बात एंटीरियर सरफेस के बारे में। अब बात करते हैं इंफीरियर और डायफ्रेगमेटिक सरफेस। ये जो सरफेस है लार्जली हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, and the inferior surface of the heart gently slopes anterior inferiorly towards apex. तो ये जो सरफेस है एंटीरियो इंफीरियरली जाएगी टवर्ड्स अपेक्स, अपेक्स की तरफ जाती है। जैसे कि आप सब लोग देखेंगे कि ये जो, अगर हम हार्ट को इस तरह से कुछ शेप में दिखाए, ये एंटीरियर एस्पेक्ट हमने दिखाया, तो जो पोस्टीरियर सरफेस होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, एंटीरियो इंफीरियरली, यानी थोड़ी सी आगे जाएगी और नीचे की तरफ जाएगी। तो ये बात थी इंफीरियर सरफेस के बारे में। स्लाइटली, बिकॉज हार्ट का पोजीशन है वो ऐसे नहीं है, अगर 3D में इमेजिन करें तो हार्ट का पोजीशन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ओके, कुछ इस तरह से, तो एंटीरियो इंफीरियरली जाएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के बना हुआ है इंफीरियर जो पार्ट सरफेस है वो, and rests mainly on a central tendon, small area of left muscular part of diaphragm. तो वो रेस्ट किस पर करेगा, डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो है वो डायाफ्राम के ऊपर ही रेस्ट करता है, मेजर पार्ट होगा वो, और मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ही बना है। लेफ्ट वेंट्रिकल का ज़्यादा पोर्शन है, एंटीरियर में राइट वेंट्रिकल का रहेगा, पोस्टीरियर में लेफ्ट वेंट्रिकल का पोर्शन रहेगा। Now let's see the next. It is separated from anatomical base by the atrioventricular groove and a transverse oblique by a posterior interventricular groove. ये क्या लिखा हुआ है कि एनाटॉमिकल बेस से सेपरेट हुआ है, किससे, इंट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड ट्रांसवर्स ऑब्लिक बाय पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो यहाँ पे हमें ये इस जगह पे हमें देखने को मिला है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, ये सेपरेट हुआ है किससे, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ओके, और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से सेपरेट हुआ है, ये पोस्टीरियर है। ओके, तो मेजरली पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वो लेफ्ट से ही, लेफ्ट वेंट्रिकल ही कवर करता है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, व्हाट इज लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट। तो अभी लेफ्ट सरफेस है फेसिंग पोस्टीरियो सुपीरियरली टू द लेफ्ट
The left surface consists almost entirely obtuse margin of the left ventricle. तो जो लेफ्ट सरफेस है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को कवर करेगी. ओके, बट स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम एट इट लेट्स कंट्रीब्यूट सुपीरियरली. तो ज्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल और एक छोटा सा पार्ट होगा लेफ्ट एट्रियम का, उसको ये कवर करेगी. Convex and widest superiorly well, it is crossed by a atrioventricular groove. It narrows the cardiac apex. तो कार्डियक अपेक्स को नैरो बनाती है. एंड कॉन्वेक्स एंड वाइडेस्ट सुपीरियरली एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव पे हमें देखने को मिलेगी. इसके लिए भी हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा. यहाँ पे जैसे कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, यहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ्ट जो बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, मेनली कवर करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल को, और छोटा सा पार्ट है अपर पार्ट लेफ्ट एट्रियम का, उसे कवर करेगी. एंड यहाँ पे है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ये हमें देखने को मिल गया है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज अबाउट द लेफ्ट सरफेस. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज सेपरेटेड बाय द पेरिकार्डियम फ्रॉम द लेफ्ट फ्रेनिक न्यूरोवास्कुलर बंडल. अब लेफ्ट फ्रेनिक न्यूरोवास्कुलर बंडल है, उससे सेपरेट किससे होगा? ऑब्वियसली पेरिकार्डियम है, वो हार्ट का कवर है, तो वही सेपरेट करेगा. एंड बाय द लेफ्ट प्लूरा फ्रॉम अ डीप कॉन्वेकेविटी ऑफ द लंग. और यहाँ पे लेफ्ट प्लूरा भी उसमें हेल्प करेगा, बिकॉज प्लूरा है वो लंग्स का कवरिंग है, तो जो न्यूरोवास्कुलर बंडल से सेपरेट करेगा क्या? पेरिकार्डियम और प्लूरा. नाउ राइट सरफेस, द राइट सरफेस ऑफ द हार्ट. The right surface is rounded and formed by a right atrium. ठीक है, ये है right surface formed by the right atrium. ये है right surface. ओके, तो ये right surface right atrium से बनी हुई है. It is separated from the mediastinal aspect of the right lung by a pericardium and pleural covering. Similarly जैसे लेफ्ट साइड पे था, यहाँ पे राइट साइड पे हमें देखने को मिलेगा. It convexity merges inferiorly into short intrathoracic part of inferior vena cava above into the superior vena cava. तो यहाँ पे हमें स्लाइट कॉन्वेक्सिटी देखने को मिलेगी. कहाँ पे मर्ज होगी? यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा के ऊपर. ओके, द सल्कस टर्मिनालिस इज द प्रोमिनेंट लैंडमार्क सेपरेटिंग द सिस्टमिक एट्रियल वेनस साइनस फ्रॉम द appendages. It curves approximately along the junction of sternocostal and right surface corresponding to the position of the terminal crest. तो यहाँ पे हमें सल्कस टर्मिनालिस देखने को मिलेगा. ये जो है वो सल्कस टर्मिनालिस है. ओके, दिस इज द सल्कस टर्मिनालिस. सिस्टेमिक एट्रियल वेनस साइनस फ्रॉम द अपेंडेज, ये जो है वो डिवाइड करता है. देखिए हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है. ओके, तो अभी हम सरफेस के बारे में यहाँ से जानेंगे. तो ये हुई राइट सरफेस, ये हुई लेफ्ट सरफेस, मेनली कवर करेगा. ओके, पोस्टीरियर सरफेस का जो कवरिंग होगा वो मेनली राइट वेंट्रिकल से होगा. तो ये बात हुई. ठीक है, नाउ लेट्स सी द अपर बॉर्डर ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट. ओके, नाउ सरफेस की बात हो गई, अभी बात होगी बॉर्डर्स के बारे में. तो बॉर्डर्स भी क्या है? अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के ऊपर की जो बॉर्डर है वो मेनली दिस इज एट्रियल एंड एंटीरियर टू इट आर द असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक एंड इट्स एक्सट्रीमिटीज द सुपीरियर वेना केवा एंटर्स द राइट एट्रियम. तो ये जो है ये अपर बॉर्डर है, बराबर, अपर बॉर्डर. यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? सुपीरियर वेना केवा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक इसके आगे है, यानी कि जो ये बॉर्डर है ये पीछे है, बराबर. कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, द इंफीरियर बॉर्डर की बात करते हैं, तो ऑल्सो नोन एज द एक्यूट मार्जिन ऑफ द हार्ट. इंफीरियर बॉर्डर इज शार्प, थिन एंड नियरली हॉरिजॉन्टल. तो इंफीरियर बॉर्डर ये है, बराबर, शार्प है, थीन है और नियरली हॉरिजॉन्टल है हार्ट के लोकेशन. इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ राइट बॉर्डर टू द अपेक्स एंड इज फॉर्म्ड मेनली बाय अ राइट वेंट्रिकल
विथ स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ लेफ्ट वेंट्रिकल नियरली अपेक्स। तो ये जो है राइट इंफीरियर बॉर्डर, वो मेनली जो बनी हुई है राइट वेंट्रिकल से, और थोड़ा सा पार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का है, उसी से बनी हुई है। तो ये थी इंफीरियर बॉर्डर। देन लेट्स सी द राइट बॉर्डर corresponding to the right atrium. The profile right border is slightly convex and the right as it approaches the vertical. तो ये है, ये बॉर्डर राइट बॉर्डर है। ओके, ये राइट बॉर्डर है, थोड़ी सी कॉन्वेक्स है और राइट एट्रियम को कवर करती है। ओके, corresponding to the right atrium. And left border of the heart, also known as the obtuse margin, the left border separates the sternocostal and left surface. जो लेफ्ट सरफेस और ये जो है वो लेफ्ट बॉर्डर है, बराबर, ये सेपरेट करेगी लेफ्ट सरफेस को और स्टर्नोकॉस्टल को, दोनों को सेपरेट करेगी। इट इज राउंड एंड मेनली फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, but it is slight extent superiorly and formed by the left atrial appendage similarly to the left surface की जैसे ही मेनली बना जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, बस छोटा सा पार्ट होगा वो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज से बनेगा। इट डिसेंड्स obliquely convex to the left from the appendage to the cardiac apex। तो यहाँ पे ये डिसेंड होगी, कॉन्वेक्स होगी, ठीक है, और टू द कार्डियक अपेक्स। तो ये थी लेफ्ट बॉर्डर, अपर बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट खत्म होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा उसके बारे में चलिए सबसे पहले एक छोटा सा समराइज करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा एपेक्स बेस ऑफ द हार्ट, सरफेसेस ऑफ द हार्ट एंड बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। तो अपेक्स में हमने जाना कि अपेक्स है वो लेफ्ट साइड है, कॉनिकल है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का मेजर जो पार्ट है वो कवर करेगा। यहाँ पे हमें जो बीट देखने को मिलेगी मेनली फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है। ओके, लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, और यहाँ पे पल्सेशन हमें देखने को मिलेगा, और पेरिकार्डियम जो अपेक्स होगा वो प्लूरा से, ठीक है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से है, और लंग और प्लूरा से ढका हुआ है, बराबर। तो ये बात थी लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी अपेक्स के बारे में। नाउ लेट्स सी, दिस इज द अपेक्स के बारे में यहाँ पे बात हुई फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। अपेक्स है, यहाँ पे पल्स देखने को मिलेगा, और जो चाइल्ड होंगे वहाँ पे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में देखने को मिलेगा, एंड इट इज ओवरलैप्ड बाय लंग एंड प्लूरा। अब कार्डियक वो बेस है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, मेनली ये जो कवर करेगा वो करेगा राइट एट्रियम को, और थोड़ा सा पार्ट होगा वो लेफ्ट एट्रियम, मेनली जो कवर करेगा लेफ्ट एट्रियम को, और थोड़ा सा पार्ट होगा वो राइट एट्रियम का होगा। और कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे वो डिवाइड होगा यहाँ से कुछ इस तरह से, वर्टेब्रा से, और वर्टेब्रा और हार्ट सेपरेट किससे होगी उसके बारे में देखा। इसोफेगस, सुपीरियर वेना केवा एंड एओर्टा जो बीच में सेपरेट करेंगे वर्टेब्रा को और हार्ट को। और कहाँ से स्टार्ट होगा, सुपीरियरली पल्मोनरी ट्रंक एओर्टा से स्टार्ट होगा, और इन्फीरियरली ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है वहाँ तक। inferiorly posterior part of atrioventricular groove है, coronary arteries के branches होगी वहाँ तक, यहाँ तक ये जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट है, बराबर। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इंटर एट्रियल ग्रूव, ये है राइट एट्रियम जिसका छोटा सा पार्ट कवर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का लेफ्ट एट्रियम जिसका ज़्यादा पार्ट कवर करेगा, ठीक है। एंड कार्डियक क्रक्स की बात हुई जहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स, इंटर एट्रियल ग्रूव्स, और यहाँ पे हमें इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स जो मिलेंगे उसको यहाँ पे हम कार्डियक क्रक्स बोलेंगे, जिसके बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिला। देन उसके बारे में हमने बात की कि दो पल्मोनरी वेन्स के जो है राइट एंड लेफ्ट दोनों को डिवाइड करती है, उसको ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस बोला जाएगा। ये जो है वो ट्रांसवर्स साइनस है जो एट्रियल ट्रंक और वेनस ट्रंक को डिवाइड करता है। फिर हमने बात की सरफेसेस के बारे में कि एंटीरियर सरफेस है मेनली वो है कॉन्वेक्स देखने को मिलेगी, और जो जाएगी वो लेफ्ट साइड पे कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। सुपीरियरली अगर हम बात करें
तो ये कंसिस्ट क्या करेगी कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर पार्ट को कवर करती है और छोटा सा एट्रियम पार्ट होता है उसको कवर करेगी। देन एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव को कवर करेगी। मेनली जो एंटीरियर पार्ट है वो सरफेस है, उसमें राइट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा ही हिडन होगा। जिस तरह से हमने बेस में देखा कि लेफ्ट एट्रियम ज़्यादा कवर करेगा, उससे उल्टा यहाँ पे हो रहा है, बराबर। थोड़ा सा पार्ट ही लेफ्ट एट्रियम का हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि 2/3 ऑफ द पार्ट रहेगा वो राइट वेंट्रिकल 2/3 ऑफ द पार्ट रहेगा वो राइट वेंट्रिकल का रहेगा, 1/3 लेफ्ट वेंट्रिकल का रहेगा। राइट एट्रियम मेजॉरिटी कवर कर देगा यहाँ पे, एंड लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा ही पार्ट कवर करेगा, जिससे छोटा सा पार्ट दिखेगा। हमें यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये- यहाँ पे हमें इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिल जाएगा। और जो स्टर्नोकॉस्टल सरफेस है उससे किस तरह से डिवाइड होगी कि पेरिकार्डियम और प्लूरा से होगी, लेफ्ट साइड पे भी अगर प्लूरा से ही सेपरेट होगी। तो कुछ इस तरह से हमने बात की एंटीरियर सरफेस की। फिर इन्फीरियर सरफेस की बात हुई, तो इन्फीरियर सरफेस मेनली जो है वो एंटेरो इन्फीरियरली स्लोप होगा, बिकॉज जो हार्ट का पोजीशन है वो 3D में अगर जाए तो कुछ इस तरह से है, बराबर। मेनली फॉर्म किससे होगा? वेंट्रिकल से फॉर्म होगी इन्फीरियर सरफेस। छोटा सा पार्ट है वो डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट करती है, बराबर। चीफली लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वही इन्फीरियर सरफेस को कवर करेगा। एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्स ऑब्लिक साइनस वो हमें इस सरफेस पे भी देखने को मिलेंगे। लेफ्ट सरफेस की बात की जाए तो वो मेनली कॉन्वेक्स है और ये मेनली जो कवर करेगी वो लेफ्ट वेंट्रिकल का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करेगी, और छोटा सा पार्ट होगा जो राइट एट्रियम का लेफ्ट एट्रियम का कवर करेगी। एंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और नैरो होगा कार्डियक अपेक्स पे। पेरिकार्डियम के थ्रू न्यूरोवास्कुलर जो लेफ्ट फ्रेनिक न्यूरोवास्कुलर बंडल है उसके सेपरेट होती है, और लेफ्ट प्लूरा एंड लेफ्ट लंग की कॉन्केविटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। नाउ लेट्स सी द राइट सरफेस। तो राइट सरफेस राउंडेड है, राइट एट्रियल वॉल में देखने को मिलेगी। ये ज़्यादातर कवर करेगी राइट एट्रियम का थोड़ा सा पार्ट होगा वही कवर करेगी, ठीक है। Mainly, the right surface is rounded and formed by the right atrial wall. Okay, is the separated from the mediastinal aspect of the right lung. कॉन्वेक्स है और सल्कस टर्मिनालिस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो राइट सरफेस है वो राइट एट्रियम से बनी है, बराबर। एंटीरियर सरफेस हमें देखने को मिली वो बनी है मेजरली राइट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम का छोटा सा पार्ट एंड राइट वेंट्रिकल का मेजर पार्ट और थोड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट। ये थी एंटीरियर सरफेस के बारे में। बेस की बात की जाए तो बेस मेनली लेफ्ट एट्रियम से ही बना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही बना हुआ है। और लेफ्ट सरफेस की बात की जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम उसको ऑब्ट्यूज मार्जिन भी बोलेंगे, एंड इन्फीरियर जो डायफ्रेगमेटिक सरफेस है वो भी हमें देख लिए। एपेक्स यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये था सल्कस टर्मिनालिस। फिर हमने बॉर्डर की बात की, तो अपर बॉर्डर ये जो रहेगी वो पीछे रहेगी किससे? पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक से और एओर्टा से और सुपीरियर वेना केवा से। राइट जो बॉर्डर होगी वो राइट एट्रियम को और थोड़ा सा पार्ट होगा राइट वेंट्रिकल का उसको कवर करेगी, जो यहाँ से इंफीरियर बॉर्डर बन जाएगी, जो भी ज़्यादातर कवर करेगी राइट वेंट्रिकल को और थोड़ा सा कवर करेगी एपेक्स का जो लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है उसको, तो इंफीरियर बॉर्डर। एंड लेफ्ट जो बॉर्डर होगी उसको ऑब्ट्यूज मार्जिन भी बोला जाता है, वो लेफ्ट एट्रियम से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल के एपेक्स तक कवर करेगी, और वो थोड़ी सी जो सरफेस है वो नियरली हॉरिजॉन्टल है इंफीरियर, ये है नियरली वर्टिकल सरफेस है, और ये जो है हमें देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी कॉन्वेक्स होगी। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर छोटी मोटी गलती रह गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। मैं अपने जो लेक्चर्स हैं उन पे वर्कआउट करता रहूँगा इसी तरह से। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे।